Hello students, how are you? Today we are starting our ongoing content of the history, and our today's topic is the modernization in Europe, especially in the England. So after the modernizations, one sector was the most developed, that is the industrial sector. So in previous video we have seen that is the different kind of industries were set up in England, and England was the area which was the most prosperous, which was the most suitable for the industrialization, because England was blessed in the iron sector, in the coal sector, and in the geographical position. So in London, also the city of England was the major important city for the market, for the trade. So London was the biggest center for the all kind of business activity, trade activity. They develop regularly to enhance their economic condition. So in this era we will see how the London or England was developed in the coal or iron sector. Due to the coal and iron sector, they have much benefited for the other industrial sector. Whenever we found the iron and what was the use of iron, कि we have हमने बहुत सारा आयरन फाइंड आउट कर लिया, एंड आफ्टर दैट उस आयरन को कहाँ कहाँ यूज किया जाने लगा. Coal, what was the use of coal? Before that, coal produce were main the occurred in the Britain. So these situations create a balancing in the England's economy. And after that we will see how do they new invention in the cotton sector, which change in the greatest in the textile industries, or the major two cities of the England, that is the Manchester and the Liverpool, arise as are the biggest center of the textile in the sector in world. So इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे शुरू हुआ इंग्लैंड में, वैसे वैसे इंग्लैंड के और शहर भी डेवलप हो गए. और हम देखेंगे कि टेक्सटाइल के सेक्टर में जब हम स्पिनिंग और वेविंग की बात करेंगे तो लंदन के दो शहर मैनचेस्टर एंड लिवरपूल कैसे एक बहुत बड़े टेक्सटाइल के सेंटर बन गए थे. तो हम इस चैप्टर में देखते हैं बहुत सारे सेगमेंट जो रिलेटेड है आयरन, कोल एंड द स्पिनिंग एंड द वेविंग इन टेक्सटाइल. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक about the class 11 history. Okay, so our today's topic is the coal and iron. Coal and iron. So here we will discuss about the major inventions in the sector of iron and the coal. So first of all, coal का invention कैसे बात करते हैं कि जो इंग्लैंड वॉज द फॉर्चुनेट इन द कोल एंड द आयरन सेक्टर, विच प्लेस इंग्लैंड. तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता था, आयरन एंड कोल. फॉर्चुनेट इन द आयरन एंड द कोल. सो दे स्टेपल मटेरियल्स फॉर द मैकेनिज्म the plentifully available were to the minerals lead, copper or tin. What the use for the industry? However, until the 18th century, the scarcity of the usable iron, यानी 18th century तक जो आयरन था अवेलेबल था, बट हमारे पास उसकी बहुत कमी थी. So iron draw out from the pure liquid metal to process called the smelting. For centuries, the charcoal was used for the smelting process. यानी आयरन को जो स्मेल्ट किया जाता था उसमें जो यूज किया जाता, दैट इज द चारकोल. चारकोल के थ्रू उसको स्मेल्ट किया जाता था. दिस एट द सेवरल प्रॉब्लम. इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आती थी. क्या कि चारकोल वॉज टू फ्रेगाइल, यानी जो चारकोल होता था वो अपने आप में बहुत सॉफ्ट होता था. जब वो खुद ही सॉफ्ट है तो आयरन को कहाँ से मेल्ट करेगा, है ना. जबकि आयरन तो इतना सॉलिड होता है तो उसको मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हीट वाला आयरन, हीट वाला चारकोल चाहिए. एंड ट्रांसपोर्ट टू द डिस्टेंस. सो इट इम्प्योरिटीज प्रोडक्ट्स ऑफ प्योर क्वालिटी आयरन. तो इसका हमने कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला, और वो सॉल्यूशन निकाला है इंग्लैंड ने. और इंग्लैंड में एक आयरन के सेक्टर में सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट हुआ है वो किया है डार्बीज ऑफ द श्रॉफशायर. डर्बीज बोलते हैं इसे, डर्बीज ऑफ श्रॉफशायर.
डर्बीज ऑफ द शॉपशायर, ठीक है, ये जगह का नाम है। वहां पर जो डर्बीज है, डर्बीज क्या है, 3 जनरेशंस है, 3 जनरेशन है, जिसमें है ग्रैंडफादर, फादर और सन। तो 3 जनरेशन ने 3 डिफरेंट इन्वेंशंस किए हैं आयरन के सेक्टर में, जिसको कहते हैं डर्बीज, ठीक है। तो इनकी फैमिली है, इन्होंने 3 जनरेशन है इनकी, ग्रैंडफादर, फादर और सन। इन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए। तो सबसे पहला हम बात करेंगे फर्स्ट इन्वेंशन। तो आपको ये इन्वेंशंस के टॉपिक्स बनाने हैं, और जो फर्स्ट इन्वेंशन किया है वो क्या है, अब्राहम डर्बी ने। अब्राहम डर्बी, क्लियर। और ईयर है उसका अब्राहम डर्बी का, दैट इज इन 1709, 1709। जो ईयर दिए हुए वो दिए हुए 1677 टू द 77, ये इनके ईयर्स हैं, मतलब कब इनका बर्थ हुआ था, कब इनकी डेथ हुई थी। लेकिन इन्होंने जो इन्वेंशन किया है वो 1709 में किया है। तो किस चीज का इन्वेंशन किया है, द ब्लास्ट फॉरेंस दैट कुड यूज कोक। ब्लास्ट फॉरेंस, blast furnace or that would use coke, जो कोयले की जगह यूज की जा सकती थी, एक ऐसी भट्टी which could generate high temperature। क्या जनरेट कर सकती थी, हाई टेम्परेचर। यानी जब हाई टेम्परेचर अब इस भट्टी में होने लगा तो कोयले की जरूरत नहीं हुई और इजीली हम आयरन को मेल्ट कर सकते थे। सो कोक वाज डेराइव्ड रिमूविंग द सल्फर अर्थ एंड इम्प्योरिटीज। इससे सल्फर और इम्प्योरिटीज हटाने के काम आता है। अगर हम बात करें तो सेकेंड इन्वेंशन, तो ये तो थे फर्स्ट इन्वेंशन। सेकेंड इन्वेंशन किया है सेकेंड डर्बी ने, ठीक है। तो सेकेंड डर्बी ने जो इन्वेंशन किया है वो क्या है, इन्होंने रॉट आयरन टू द फ्रॉम पिग आयरन, wrought iron to the pig iron। यानी कि जो एक कच्चा लोहा होता था, यानी कि जो कम टूटने वाला था, रॉट आयरन, जिसको इजीली कन्वर्ट किया जा सकता था, उसको कन्वर्ट करके जो इन्होंने चेंज किया है दैट इज इनटू द पिग आयरन। पिग आयरन मीन्स एक तरीके से किसी को हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। एक और पर्सन है हेनरी कोट, ही डिजाइन द पुडिंग फॉरेंस इन द मेल्टन आयरन कुड बी द रिड इम्प्योरिटीज। तो हेनरी कोट को हम बाद में देखेंगे, बट आप यहाँ अलग से लिख लेना हेनरी कोट, क्योंकि ये हेनरी कोट, क्लियर, क्योंकि ये हमारे उसमें नहीं आते हैं डर्बी ब्रदर्स में, तो इनको हम अलग से लिखेंगे। सो हेनरी कोट का जो इन्वेंशन है, उन्होंने पुडिंग फॉरेंस बनाया है, हेनरी कोट। इनका इन्वेंशन हम अलग से प्रिपेयर करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं जो हमारे डर्बी ब्रदर्स हैं उनके लिए, क्लियर। एंड जो थर्ड डर्बी है, थर्ड डर्बी ने 1779 में, थर्ड 1779 में देखिए इन्होंने क्या बनाया, थर्ड डर्बी, दैट इज अ बुल्ट ऑफ फर्स्ट आयरन ब्रिज। बिल्ट फर्स्ट आयरन ब्रिज, पहला लोहे का पुल बनाया है। कौन सी रिवर पे बनाया है, इन द वर्ल्ड्स क्रोल ब्रुकडेल। क्रोल ब्रुकडेल एक नाम है रिवर का, उसका प्लेस का, और रिवर का नाम है सेवर्न, ऑन रिवर से ऑन। कौन सी रिवर है, रिवर का नाम आपको याद रखना है, रिवर सेवर्न।
सेवर्न रिवर पर। क्लियर? तो ये 3 डर्बीज की इंपॉर्टेंस अचीवमेंट्स दिए हुए हैं। अब हम बात करेंगे, एक और पर्सन है 1770 में, दैट इज द जॉन विल्किंसन। ये अब इनके अलावा है जॉन विल्किंसन। इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स दिए हैं देखिए। जॉन विल्किंस ने 1770 में मेड द फर्स्ट आयरन चेयर। 1770 में मेड आयरन चेयर, यानी लोहे की कुर्सी बनाई है। इसके अलावा क्या बनाए ने? वर्ड्स मतलब एक तरीके से जो टंकी होती है, वर्ड्स फॉर द बेवरीज, चाय की जो टंकी होती है वो। उसके अलावा डिस्टिलरीज, यानी कि जिसमें शराब रखी जाती है, एंड आयरन पाइप्स, और आयरन के पाइप्स भी इन्होंने बनाए हैं, आयरन पाइप्स। तो इस तरीके से एक ये जो डेवलपमेंट हुआ है डे बाय डे आफ्टर द आयरन। सो यहाँ हमें याद करने हैं ये सारी चीज। अब हम बात करते हैं हेनरी कोर्ट की, जिन्होंने डिजाइन किया है पुडिंग फोरेंस। पुडिंग फॉरेंस, भट्टी कहते हैं फॉरेंस को, जो एक किसी चीज को ढलाने के लिए काम आती है। मीन्स विच मेल्टन आयरन कुड बी द रिड ऑफ इम्प्योरिटी, यानी कि किसी लोहे से इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के काम आती है। ये हमने अलग इसलिए लिखा है क्योंकि ये 3 जो डर्बी ब्रदर्स है उनसे अलग है। तो ये 3 जो किसने किए हैं, वो किए हैं डर्बीज ने। ओके, जो हम पढ़ चुके हैं ये वाला। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको ऐसे लर्न होनी चाहिए। सो अब इसके बाद देखिए, जो सवर्न रिवर पर पुल बना है, दैट इज द यूज फॉर द कास्ट आयरन फ्रॉम द फर्स्ट टाइम टू मेक वाटर पाइप्स 40 miles फॉर इट द वाटर सप्लाई ऑफ पेरिस, यानी कि अब इसके पाइप की सप्लाई भी शुरू हो गई थी। तो आयरन देन केम टू बी द connected the specific region as the integrated unit of the coal mining and the iron smelting. So Britain was lucky to possessing excellent cooking coal and the high grade iron ore in the same basins or even the same seams. यानी इंग्लैंड जो था, ब्रिटेन जो था, वो इस मामले में बहुत ज्यादा लकी था, और इस तरीके से वहां पर ये तेजी से डेवलप हुआ है। ओके, तो ब्रिटेन में जो एक आयरन इंडस्ट्री का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 1800 से 1830 तक, यहाँ हम बात करते हैं 1800 से 1830 तक जो इंडस्ट्रीज थी वो कितनी हो गई थी? क्वाड्रेपल्ड। क्वाड्रेपल्ड मतलब 4 गुना। मतलब 4 गुना। जो पहले इंडस्ट्रीज थी वो और भी ज्यादा तेजी से डेवलप हो गई, 4 गुना उनकी स्पीड बढ़ गई थी। और 1820 में जो एक आयरन का बताते थे 8 टन कोल होता था, अब 1850 तक वो बढ़ करके 2 टन होने लग गया। क्लियर? और 1848 में ब्रिटेन वाज द स्मेल्टिंग मोर आयरन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर, यानी कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा आयरन है वो वहां पर जाने लग गया। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द कॉटन एंड द वीविंग सेक्टर। कॉटन एंड वीविंग सेक्टर। सो कॉटन और वीविंग सेक्टर में पहले क्या था, स्पीड बहुत स्लो थी हमारी, तो हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाते थे, बहुत ज्यादा क्लोथ्स को नहीं बना पाते थे। तो कॉटन और स्पिनिंग के सेक्टर में कैसे एक डेवलपमेंट हुआ है वो हम देखते हैं। कॉटन, स्पिनिंग एंड वीविंग एंड वीविंग। क्लियर? तो इस तरीके से वीविंग के सेक्टर देखते हैं। तो ब्रिटिश ऑलवेज वोवन क्लोथ्स फॉर वूल्स एंड द फ्लैक्स फ्रॉम द 17th century. The country had been importing west the cotton clothes from India to great cost. हमेशा से इंडिया से एक्सपोर्ट होता था। As the East India Company political control part of the India was established, so it began to import along with raw materials such could be the spun and the woven
इनटू द क्लोथ इन इंग्लैंड। आपको पता ही है जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़्यादातर यहाँ का जो रॉ मटेरियल है वो काम पर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था इंग्लैंड में। क्लियर। तो 18th सेंचुरी तक जो उनके काम की स्पीड थी वो बहुत स्लो थी। तो स्लो स्पीड की वजह से एक कपड़े को बनाने के लिए कम से कम 10 स्पिनर्स की जरूरत होती थी। तो डे बाय डे इसमें तरक्की आई और 1780 तक अगर हम देखें तो कॉटन इंडस्ट्री ब्रिटिश का एक सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सेक्टर बन गया। कैसे बना है तो वो 5 इन्वेंशंस दी हुए हैं आपके पेज नंबर 201 पर, पेज 201। तो आपको ये 5 इन्वेंशंस लिखने हैं, लर्न करने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ्लाइंग शटल, फर्स्ट फ्लाइंग शटल। देखिए फ्लाइंग शटल लूम, तो ये इसका ईयर कौन सा है 1733। 1733। और इससे क्या पॉसिबल हुआ, इससे पॉसिबल टू वीव ब्रॉडर फैब्रिक, पॉसिबल टू वीव ब्रॉडर फैब्रिक, यानी कि ज्यादा बड़ा कपड़ा बनाना पॉसिबल हो गया। ओके। सेकेंड अगर हम बात करें तो दैट इज टू द स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी। इनका इन्वेंशन देखते हैं किसने किया है, और ये इन्वेंशन हुआ है 1765 में बाय द जेम्स हारग्रीव्स। 1765 बाय जेम्स हारग्रीव्स। क्लियर। तो इन्होंने जो इन्वेंशन किया है वो क्या है कि विच अ सिंगल पर्सन कुड स्पिन द सेवरल थ्रेड यार्न सिम्युलटेनियसली, यानी एक ही व्यक्ति एक बार में बहुत सारे, सिंगल पर्सन कुड स्पिन सेवरल थ्रेड, अ सिंगल पर्सन कुड, यानी कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है, सिंगल पर्सन कुड स्पिन सेवरल थ्रेड, एक साथ कई सारे धागे को काटना जिसको हम कहते हैं, उसे कहते हैं स्पिन विद द सेवरल थ्रेड्स। थर्ड है वाटर फ्रेम, वाटर फ्रेम। तो वाटर फ्रेम का इन्वेंशन देखिए किसने किया है, रिचर्ड आर्कराइट। और इनका ईयर है, रिचर्ड आर्कराइट का ईयर है 1769, 1769 में किया है। ओके। और इन्होंने क्या पॉसिबल किया है, टू प्रोड्यूस अ मच स्ट्रॉन्गर थ्रेड देन बिफोर, मच स्ट्रॉन्गर थ्रेड, यानी पहले जो होता था उससे ज्यादा मजबूत धागा इन्होंने बनाना शुरू किया। फोर्थ म्यूल, सैमुअल मूल आपको पता ही होगा, ये बहुत फेमस नेम है। म्यूल का आविष्कार किसने किया, दैट इज द सैमुअल क्रॉम्पटन, सैमुअल क्रॉम्पटन। ठीक है। तो सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया है 1779 में, ये भी 1779। ओके। और इन्होंने जो किया है दैट अलाउड टू स्पिनिंग टू स्ट्रॉन्ग एंड फाइन यार्न, स्ट्रॉन्ग एंड फाइन यार्न, एकदम फाइन और मजबूत धागा। और 5वें नंबर पे अगर हम बात करें, फिफ्थ, मैं यहां लिख देती हूँ, फिफ्थ वाले हैं दैट इज द पावर लूम बाय एडमंड कार्टराइट, पावर लूम। क्लियर। तो पावर लूम को किसने बनाया है, उनके इन्वेंशन है 1787 में एडमंड इनका नाम है एडमंड कार्टराइट। ठीक है। तो इन्होंने किस चीज का इन्वेंशन किया, दिस में इजी टू वर्क stop automatically every time a thread broke and could be used to the weave any kind of material from 1830, यानी कि
बीच में जब काम करते थे तो धागा जो है वो टूट जाता था, अब वो टूटे नहीं, कंटिन्यूसली चलता रहे, तो इसके लिए उन्होंने इन्वेंशन किया था। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको क्या करना है, जो भी इन्वेंशन बताए हैं वो लिखने हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टीम पावर के बारे में बात करेंगे कि स्टीम पावर क्या है। मैं आपको अभी पढ़ के बता देती हूँ। वैसे स्टीम पावर के भी 4 इन्वेंशंस हैं, आपको इसके भी नोट्स बनाने होंगे। एंड देन कैनाल्स एंड रेलवे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही नोट्स बनाने हैं, कॉटन स्पिनिंग के एंड देन रेलवे सॉरी आयरन के। तो आयरन के जो हैं वो पहले आपको बता दिए थे, और उसके बाद आपको जो करने हैं दैट इज फ्रॉम द आयरन प्लस क्या बोलते हैं उसे, कॉटन इंडस्ट्रीज के सेक्टर्स। तो ये सारी चीजें आप याद करके रखिए। सो आई होप बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा होगा आपको, और पढ़ने में भी आपको बहुत मजा आ रहा है। तो ये सारी चीजें इन्वेंशन के बेसिस पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो रीड इट केयरफुली और अच्छे से क्लियरली नोट्स बना के चलिए आप। सो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन लाइव क्लास। सो एनी डाउट क्लियर कर लीजिए। तो स्टीम पावर का है वो आपको लाइव क्लास में क्लियर करा दूंगी, तो उसके बाद आप उसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।